Rahim. So we've been talking about the various malignancy of the hepatico-pancreatico-biliary system, and today we are going to talk about a condition which itself is quite ferocious and can cause mortality and morbidity of quite high range. Now, acute pancreatitis, while we were house surgeons or we were surgeons in training, was not a very common condition to which we were facing in our emergencies or our other admissions. But at this point of time, you visit any surgical ward, not only of Mayo Hospital but of any surgical department of this city, you will find many patients there with acute pancreatitis. और जब हम आगे चल के डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या वजह है कि जो फिनोमिनल इंक्रीज़ हो गया है पेनकेटाइटिस के नंबर में. सिमिलरली आप अगर गौर करें तो इट वाज नियरली अननोन टू हेयर अबाउट समबडी हैविंग गॉल स्टोन्स इन अ मेल पेशेंट. मुझे नहीं याद पड़ता कि अपनी 6 महीने की हाउस जॉब में मैंने किसी मेल की कोलिसिस्टेक्टमी देखी है फॉर गॉल स्टोन डिजीज़. बट नाउ आप देख सकते हैं कि किसी भी सर्जिकल वार्ड में when you would be able to come to the wards and you would be attending surgical rounds and you would be looking after those patients, you would know कि अब कितने मेल पेशेंट्स हैं जिन्हें गॉल स्टोन डिजीज़ हो रहा है और उसकी वजह से उनको कोलिसिस्टेक्टमी की ज़रूरत पड़ रही. सो वंस अगेन जब हम पैनक्रेटाइटिस की बात करते हैं, ये जो यूनिक एनाटमी है, ये जो लोकेशन है पैनक्रियास की इन द स्टमक बेड, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसकी डक्टल फॉर्मेशन है, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स इट्स प्रेजेंटेशन, टुवर्ड्स द डिफ़िकल्टी इन डायग्नोसिस दैट इट प्रेजेंट्स and the difficulty in imaging that it presents because of being in the stomach bed. We know it is deep in the retroperitoneal space. It is the long axis between the L1 and L2 vertebra. It is elongated, it has lobe-like structures, it has a main duct of Wirsung, and then it has an accessory duct of Santorini. Now, an interesting historical fact is that most of these anatomical descriptions of pancreas came from Italy, and both these ducts were also described by Italians first of all. Then we have the ample of water or the major papilla, where the main pancreatic duct opens with the common bile duct, and in the accessory duct is present about 70% of the people, and it may or may not communicate with the main pancreatic duct. Now, once again, just a revision of the blood supply that it has, the way the ductal structure is formed. This is how the structure at the ample of water, and how both these ducts, they may have a confluence early, they may open late, and how does the concretion or sludge or stones in the common bile duct can cause obstruction to the common the pancreatic duct, resulting in pancreatitis. Also how the mechanism of sphincter, if the sphincter of OD has increased pressure in it or it causes obstruction to the pancreatic outflow, how it can also cause pancreatitis. We know that it has both exocrine and endocrine function. About 80% of the gland is for the exocrine function, where the acinar cells, they produce various proenzymes and other digestive juices which are secreted into the intestines, and they are essential for the breakdown and absorption of not only glucose but also proteins and fats as well. So the acids produce these proenzymes, they go into the duct tubes, then the intralobular, then the interlobular ducts, and from there to the main duct, and hence they reach the duodenum, and where then these proenzymes, when they get that specific medium, the acidic medium, they are activated. Whereas the endocrine function is about 20% of the gland. It produces insulin, glucagon, somatostatin, and it directly goes into the capillaries and portal vein, and through there into the general circulation to regulate the not only the glucose level, but also plays an important part in general metabolism of the body.
Now, as the name indicates, pancreatitis means the inflammatory process of the pancreas, which is accompanied by abdominal pain and elevation of these serine pancreatic enzymes. Now, this abdominal pain is very characteristic, and this kind of pain, the specific symptomatology of pain, is directly related to the anatomy of pancreas, where it is located. It's a retroperitoneal structure. It is resting on the nerves and the ganglia, and when it inflames, it irritates that part and causes severe pain. And that is why these patients, they feel comfortable if they bend forward, and when they bend forward, the inflamed organ gets away from the ganglia and the nerves which are lying behind it, and there is some pain relief to the patient. Now, the incidence of pancreatitis, it is variable in various populations, and normally it's about 1 to 5 in 10,000 population per year, but these are Western figures. Our figures are definitely separate from them. Now, acute pancreatitis is inflammation of the normal gland parenchyma. It usually is reversible with raised pancreatic enzymes both in blood and the urine. But remember, this acute pancreatitis not only occurs in a normal gland, it can also take place in pre-existing chronic pancreatitis as well. Already the pancreas is damaged, already the pancreas is diseased, and it can still have acute pancreatitis on it. Now, what does it do? This is what can happen. It can vary from just simple edematous inflammation to collection and necrosis and subsequently eating up of the pancreas. अगर आप इसको देखें, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इसको किसी कीड़े ने खा लिया, जैसे लकड़ी को दीमक लग जाती है और वो दीमक उसको अंदर से खा के खोखला कर देती है. इसी तरह बिल्कुल जो पैनक्रेटाइटिस है, स्पेशली जो सीवियर पैनक्रेटाइटिस है, उसमें ग्लैंड का ऐसा ही हाल होता है. This is the theory about the pathogenesis, and this is very important to understand, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एंजाइम्स तो हमेशा से ही पैनक्रियाज के अंदर बन रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि एंजाइम्स वहाँ पे एक्टिवेट हो जाए. एक्टिवेट तो ये हमेशा जाके डूडेनम के अंदर होते हैं. सो व्हाट मेक्स देम गेट एक्टिवेटेड विद इन द पैनक्रियाटिक पैरेन्काइमा एंड डैमेज इट. So there are three basic causes to that pathogenesis. One is duct obstruction, the second is the acinar cell injury, and the third is the defective intracellular transport. Now, when there is duct obstruction, like in gallstone disease, like there is in chronic alcoholism, like in ductal concretions, like in stricture resulting in the ductal obstruction at the ampulla, we are talking about ductal obstruction of the pancreatic duct here. It causes interstitial edema, there is impairment in the blood flow, there is ischemia which results into acinar cell injury. Then intake of alcohol, various drugs, trauma, ischemia, viral infections, malignancy, they can also cause release of intracellular proenzymes and lysosomal hydrolases. That is, the lysosomal hydrolases result in activation of enzymes both intra and extracellular compartments, resulting into acinar cell injury. Then metabolic injury, alcohol ingestion, duct obstruction leads to defective intracellular transport, resulting into delivery of proenzymes into the lysosomal compartment and then intracellular activation of enzymes by the lysosomal hydrolases. All these result in acinar cell injury. Acinar cell injury leads to more enzymes which are activated. Now then, kallikrein, kinin, they cause interstitial inflammation and edema. Then various proteases, they cause proteolysis. Then lipases, phospholipases, they cause fat necrosis. Then elastase causes the breakdown of the vessel wall and resulting into hemorrhage. And all these activated combined form the picture which is known as the acute pancreatitis, and you can understand with the activation of these very highly effective enzymes how much damage they can form. Now, this is a mnemonic just to remember various causes of acute pancreatitis. The mnemonic is I get smashed. So here I stands for idiopathic,
There are still many reasons we do not understand which can cause acute pancreatitis. Then gallstones, ethanol, which is alcohol, trauma, steroids, mumps and other viral infections, then malignancies, then autoimmune conditions, scorpion stings, hypercalcemia, hypertriglyceridemia. ERCP itself not only is a diagnostic tool for pancreatitis, but it causes pancreatitis itself because we cannulate the major ampulla of water through it, and that cannulation can result in edema and subsequent duct obstruction. Then there are various drugs which can cause acute pancreatitis. It is classified. There has been traditionally Marseille's classification was used as acute relapsing, acute chronic relapsing and chronic pancreatitis. And then now Atlanta classification is the classification which is mostly used by surgeons worldwide, in which it is classified as either interstitial edematous pancreatitis or necrotizing pancreatitis. And there was a revision of Atlanta criteria in 2012, in which it was classified as mild, moderately severe acute and severe acute pancreatitis. In mild acute pancreatitis, there is absence of organ failure. Remember, pancreatitis causes systematic response. The systematic response leads to organ dysfunction and subsequently organ failure. Now, if there is absence of organ failure and there is absence of local complications, then it is a mild disease, and this is the most common variety of acute pancreatitis, mild acute pancreatitis. Then moderately severe acute pancreatitis is when local complications may or may not exist, and there is a transient organ failure which is less than 48 hours, and then that organ failure is corrected, rectified, and the patient gets better if after treatment. Then in severe acute pancreatitis, there is persistent organ failure for more than 48 hours and it may lead to death. It is the most common cause of death in patients with acute pancreatitis. And the organ failure को हम define कर सकते हैं when the systolic blood pressure is less than 90 millimeters of mercury, partial pressure of oxygen is less than 60 millimeters, there is more than 500 ml per 24 hours GI bleed, the creatinine is raised, the Ranson scores और Apache are raised as well. और अभी हम आगे चल के बात करते हैं, ये वो prognostic criteria है जिससे हम prognosticate करते हैं acute pancreatitis को. Then acute pancreatitis has two phases. The early phase is said to be the first week, and after first week it is late acute pancreatitis. Severity जिसकी हमने अभी जैसे बात की, mild है जिसमें कोई organ failure नहीं, moderate है जिसमें organ failure less than 48 hours है, और severe वो है जिसमें longer than 48 hours है. Then there are two types of complications. There is edematous complications within 4 weeks. इसको कहते हैं हम acute peripancreatic collections. More than 4 weeks, pseudocyst. Necrotizing less than 4 weeks can be an acute necrotic collection, and in more than 4 weeks is world of necrosis. हम complications के बारे में तफसील से next talk में बात करेंगे. अभी we are just focused on acute pancreatitis itself. Then what are the various fluid, metabolic, hematological and biochemical changes? आप इसका effect देखें जी. enzymes it is released into the general circulation, उनका दो effect है उसके बारे में आप गौर करें. देखें कैलिक्रिन काइनिन है जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन और एडिमा हो रहा है, प्रोटीएजेस है, इलास्टेजेस है, कोलेजनेजेस है, लाइपेज है, दूसरे अमाइलेज है, दूसरे एंजाइम्स हैं जिन्होंने एक्टिवेट होके बॉडी के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर दिया. हाइपोवोलीमिया होता है सबसे पहले. हाइपोवोलीमिया क्यों होता है? बिकॉज देयर इज थर्ड स्पेस लॉस. जो एडिमेटस इंटरस्टिशियल एडिमा की वजह से जो कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ने की वजह से जो फ्लूइड शिफ्ट्स होते हैं उसमें हाइपोवोलीमिया होता है. ये थर्ड स्पेस लॉसेज होते हैं. थर्ड स्पेस का मतलब ये कि ना फ्लूइड इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में है और ना एक्स्ट्रा सेलुलर में ऐसे मौजूद है कि बॉडी उसको इस्तेमाल कर सकती हो अपने लिए, तो वो थर्ड स्पेस लॉस है. देन हाइपोकैल्सीमिया. हाइपोकैल्सीमिया होता है जब सेपोनिफिकेशन हो जाती है, लाइपेज की वजह से फैट अब्जॉर्ब होती है जो कि पेरिटोनियम के अंदर पड़ी है, और वो फैट जो एग्जिस्टिंग कैल्शियम के साथ मिलके सोप बना देती है और सेपोनिफिकेशन की वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाती है. फिर
टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स इंक्रीज हो जाते हैं, लेफ्ट शिफ्ट होती है, प्लेटलेट काउंट्स गिर जाते हैं, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स जो है उनके अंदर इंक्रीज हो जाता है, फिब्रिनोजन के अंदर डिक्रीज हो जाती है, पीटी एपीटीटी प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, ब्लीडिंग का चांस बढ़ जाता है, और जो हेमरेजिक पेनकेटाइटिस है जिसमें कलन साइन और ग्रे टर्नर साइन आपने सुनोगे, कलन साइन एंड ग्रे टर्नर साइन, दिस इज गोइंग टू बी योर असाइनमेंट, वो मौजूद होते हैं और हेमरेजिक पेनकेटाइटिस की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है. Then to begin with, initially there is hypochloremic metabolic alkalosis because severe vomiting, बहुत ज़्यादा vomiting होती है, हाइड्रोजन आयन लॉस होता है, उसकी वजह से to begin with metabolic alkalosis होता है, और subsequently जब ये इन्फ्लेमेशन चलती रहती है लैक्टिक एसिडोसिस होता है, और दूसरी वजूहात की वजह से फिर पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है. Then hyperglycemia, hyperbilirubinemia, hypertriglyceridemia, metalbuminemia, ये सब जो है ये चेंजेस पेनकेटाइटिस की वजह से मौजूद होते हैं. Now how do we diagnose? The patient initially present करता है, वो अपर एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट करता है, नोजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, फीवर और फीवर में नॉट बी देयर, और it can present as a diagnostic dilemma. So it can confuse with the perforated duodenal ulcer, with acute cholecystitis, with mesenteric ischemia, which itself is a very difficult disease to diagnose clinically. Then ruptured aortic aneurysm, ectopic pregnancy, intestinal obstruction, and diabetic ketoacidosis. Now, how do you differentiate from each one of them? Once again, याद रखें आपका जो diagnosis है वो 3 चीज़ों पे रेस्ट करता है: history, physical examination, and investigations. हिस्ट्री की बात करेंगे, परफोरेटेड ड्यूनल अल्सर के जो पेशेंट्स होंगे उनकी प्रीवियस हिस्ट्री हो सकती है एसिड पेप्टिक डिजीज़ की, उनकी हिस्ट्री हो सकती है एनएसएड्स के क्रॉनिक यूज़ की, स्टीरॉयड के क्रॉनिक यूज़ की, और ये सडन एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं. और परफोरेटेड ड्यूनल अल्सर में पेशेंट की जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो पेरिटोनाइटिस से मिलते हैं. इसी तरह एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस की हमने बात की थी, राइट पेपरकोडेंट में होता है, टेंडर होता है, गार्ड कर रहा होता है पेशेंट, द पेशेंट मे हैव फीवर. मेसेंटेरिक इस्कीमिया में और पेनकेटाइटिस में सारे एब्डोमेन के अंदर साइंस आ सकते हैं, टेंडरनेस हो सकती है. टू बिगिन विद ये सिर्फ एपिगैस्ट्रियम में हो सकती है, बाद में पूरे एब्डोमेन में हो सकते हैं. एंड यू मे नॉट हैव द पेन इज यूजुअली मच मोर देन द साइंस दैट यू कैन एलिसिट. मेसेंटेरिक इस्कीमिया में ख़ास तौर पे जो पेन होता है वो पेशेंट के क्लिनिकल और साइंस और सिम्टम्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होता है, और उसकी वजह ये है कि जो स्कीमिया का पेन है वो किसी भी, कहते हैं इट इज़ ओनली सेकेंड टू द पेन ऑफ पार्चुरेशन. जो पेन ड्यूरिंग डिलीवरी होता है चाइल्ड की, सिर्फ उस पेन से कम स्कीमिया का पेन होता है, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है. देन रप्चर्ड एओर्टिक एनेरिज्म, ख़ास तौर पे जो पोस्टीरियर रप्चर्स होते हैं वो बहुत रिजेंबल करते हैं एक्यूट पेनकेटाइटिस को. देन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, डीके एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एज वेल. बट यू कैन ईजीली मोस्ट ऑफ द टाइम्स डायग्नोज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन. अदरवाइज अगर हिस्ट्री एग्जामिनेशन में दुश्वारी हो रही है देन इन्वेस्टिगेशंस, उसमें लैब है, इमेजिंग है, एंडोस्कोपिक है, और एंडोस्कोपिक के अंदर आप ईआरसीपी भी कर सकते हैं और स्फिंक्टरोफेडी की मैनोमीट्री भी कर सकते हैं. लैब्स में सबसे पहले जब हम कंप्लीट ब्लड काउंट्स देखते हैं तो उसमें इंक्रीज इन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, हेमाटोक्रिट बढ़ जाता है. हेमाटोक्रिट क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमने कहा थर्ड स्पेस शिफ्ट हो गया फ्लूइड. जब थर्ड स्पेस शिफ्ट हो गया है तो इसका मतलब है प्लाज्मा की मिकदार कम हो गई है, हेमाटोक्रिट बढ़ गया, विच टेल्स यू कि इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम में इंट्रावास्कुलर फ्लूइड डिप्लीशन हो गई है. देन देयर इज एन इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट because of the same reason, and there is derangement in coagulation profile. PT APTT इंक्रीज कर जाते हैं, FDPs बढ़ जाते हैं, फिब्रिनोजन कम हो जाती है. Then blood urea, serum creatinine, they may be raised, blood glucose is raised, arterial pressures of oxygen are decreased and carbon dioxide levels are raised. ये आपको बताते हैं कि acute lung injury होना शुरू हो गई. वो inflammatory प्रोसेस की वजह से शुरू है, जो मल्टी सिस्टम ऑर्गन डिस्फंक्शन शुरू है उसका एक बड़ा कंपोनेंट ARDS है. और इसमें एक और जो थीसिस प्रपोज किया जाता है वो ये है कि चूंकि पैनक्रियास बिल्कुल डायफ्राम के साथ पड़ा है तो ट्रांस डायफ्रेगमेटिकली बड़ी इजीली इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड्स चले जाते हैं, प्लूरल एफ्यूजन्स कर देते हैं और वो ज़्यादा आसानी से डैमेज करते हैं लंग को. ARDS का
दूसरा आसान नाम याद रखने के लिए आप समझे, दैट इज़ नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा। ठीक है, जो एल्वियोलो कैपिलरी मेम्ब्रेन है उसमें थिकनिंग, उसमें एडीमा हो जाता है। और ये एडीमा इस वजह से नहीं है कि हार्ट फेलियर है, ये एडीमा इन्फ्लेमेशन का एडीमा है। और ये इन्फ्लेमेशन क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ वेरियस इन्फ्लेमेटरी एंजाइम्स सब्सिक्वेंटली डैमेज टू द पैनक्रियाटिक पैरेन्काइमा। फिर एलएफटीज, हमें पता है एलएफटीज बढ़ जाते हैं, बिलिरुबिन बढ़ जाती है, एल्बुमिन कम हो जाता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ सकता है। सीरम एमाइलेज इज मोर देन 1000 होमोगाई यूनिट्स। सीरम लाइपेज इज ऑल्सो raised and it is more specific than amylase, क्योंकि हमें पता है कि amylase दूसरी कंडीशंस में भी बढ़ सकता है, लाइक परफोरेटेड डूनल अल्सर के अंदर भी। देन amylase क्रेटिनिन क्लेरिन रेशियो जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। नॉर्मल वैल्यू 1 to 4% है, मगर इसमें जब amylase बढ़ जाता है तो क्लेरिन रेशियो भी बढ़ जाती है। देन सीरम लैक्टेसेंस, it is more specific in hereditary hyperlipidemia which is a cause of acute pancreatitis and alcoholic pancreatitis. Then trypsinogen activation levels in serum and urine are raised, and CRP, the C-reactive protein, the inflammatory marker, 150 मिलीग्राम पर लीटर। आजकल आपने बहुत नाम सुना होगा CRP का, स्पेशली ये जो कोविड-19 की मैनेजमेंट में सारा फोकस साइटोकाइन स्टॉर्म के ऊपर है, और साइटोकाइन स्टॉर्म को डायग्नोज करने के लिए जो CRP लेवल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें भी जो साइटोकाइन स्टॉर्म तो नहीं है, लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है टू पैनक्रेटाइटिस उसको आइडेंटिफाई करते हैं, CRP देखते हैं, और इसमें CRP रेज लेवल पे होता है। तो डायग्नोज कैसे करते हैं? डायग्नोस्टिक हमने कहा डायलेमा हो सकता है, परफोरेटेड DU के साथ मिल सकता है, मेजेंटेरिक स्कीमिया से काफ़ी रिजेंबलेंस है इसकी, एक्यूट कोलसिस्टाइटिस के साथ, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इवन। सो कहा यह जाता है कि जो 3 बड़ी बातें हैं, कैरेक्टरिस्टिक एब्डोमिनल पेन, वो कैरेक्टरिस्टिक एब्डोमिनल पेन है, पेन इन द एपिगैस्ट्रियम विच इज़ रेफर टू द बैक। पेशेंट ये कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है बरमे से कोई सुराख कर रहा है मेरे पेट में, और वो बिल्कुल उंगली से इशारा करता है कि पेन आगे भी ऐसे है और पीछे भी ऐसे जा रही है, और जब वो लीन फॉरवर्ड करता है तो पेन को आराम मिलता है ज़्यादा। सो ये पेशेंट, इनके लिए लेटना, टू लाई डाउन सुपाइन इज़ मच मोर पेनफुल। दे आर टॉसिंग एंड टर्निंग इन देयर बेड एंड दे फील comfortable while they are sitting and bending forward। तो ये कैरेक्टरिस्टिक एब्डोमिनल पेन है पेशेंट में। पेशेंट का सीरम एमाइलेज और लाइपेज जो है 3 टाइम्स से ज़्यादा अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल से रेज हुआ हुआ है, एंड स्पेसिफिकली कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स ऑन द CT स्कैन। रिमेंबर द इमेजिंग ऑफ चॉइस इन पैनक्रेटाइटिस इज अ कंट्रास्ट इनहैंस्ड CT स्कैन। सीरम एमाइलेज राइजेस विद इन, जैसे ही इंजरी होती है, जैसे ही पैनक्रियाटिक पैरेन्काइमा में इन्फ्लेमेशन शुरू होती है, एमाइलेज रेज करना शुरू होता है। इट पीक्स विद इन 3 to 5 hours and remains elevated for 3 to 5 days. Large elevations virtually assure the diagnosis। अगर हमने दूसरे कॉजेज जो है ना DU पर्फ वगैरह पहले ही एक्सक्लूड कर लिए, तो जो 3 टाइम नॉर्मल अगर उससे 10-15 गुना ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर ये पैनक्रेटाइटिस ही है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। Then urinary amylase is more sensitive and specific than blood amylase levels, and it remains elevated even after serum amylase, क्योंकि excrete करने में हमने देखा है 1 to 4% amylase creatinine clearance ratio है। तो ब्लड एमाइलेज कितने दिन तक रेज रहता है? 3 to 5 days। यूरिनरी एमाइलेज इससे भी 3-4 दिन तक रेज्ड रहता है। देन सीरम लाइपेज इंक्रीजेज इन पैरेलल विद अमाइलेज, जैसे बढ़ना शुरू होता है वैसे ही लाइपेज भी बढ़ना शुरू होता है। वो 3 से 5 घंटे में पीक में जाता है और 3 से 5 दिन तक रहता है। ये 4 to 8 hours में पीक करता है, एंड देन इट इज़ elevated for 7 to 14 days, and it is the indicator of highest probability। एमएलएस से ज़्यादा इसकी स्पेसिफिसिटी है फॉर acute pancreatitis। देन आफ्टर यू हैव डायग्नोज, तो हमने डायग्नोज किस पे किया? 3 बातों में से 2 पे। एक थी कैरेक्टरिस्टिक एब्डोमिनल पेन। याद देखें, इसमें साइन नहीं है, ये सिम्टम की बात है। उस
पेन की बात करें, abdominal signs can be misleading in acute pancreatitis. So that is characteristic pain. Then the second is elevation of amylase and lipase, and the third is the characteristic findings on CT. तो उन तीन में से दो क्राइटेरिया पूरे होते हैं तो हम कहते हैं इस पेशेंट को acute pancreatitis. तो जब हमने डायग्नोज कर लिया कि एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है, ज़्यादा अहम बात ये उसको प्रोग्नोस्टिकेट करना. हमने कैसे क्लासिफाई किया था? अटलांटा क्लासिफिकेशन थी कि माइल्ड एक्यूट है, मॉडरेट एक्यूट है या सीवियर एक्यूट है. इसकी वजह क्या है? हमें पता है कि जो मैनेजमेंट प्लान्स हैं वो ऑल्टर्ड है, वो डिफरेंट है. किस में ऑर्गन फेलियर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जब हम ऑर्गन फेलियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें अपनी मैनेजमेंट को कैसे टेलर मेक करना पड़ेगा. तो जो प्रोग्नोस्टिक क्राइटेरिया इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो रैनसन्स है, फिर ग्लासगो इमरी क्राइटेरिया है, एंड देन अपाची 2 और अपाची 3 क्राइटेरिया. सो रैनसन्स भी हमने इसके बारे में पहले बात की हुई है, और अहम तरीन बात यह है कि रैनसन्स क्राइटेरिया जो अल्कोहलिक के लिए है वो डिफरेंट है फ्रॉम दी गॉलस्टोन्स. गॉलस्टोन्स के लिए ज़रा पैरामीटर्स की जो कट ऑफ वैल्यूज़ है वो डिफरेंट है. जो यहाँ पर डिस्क्राइब की हैं वो कौन सी वाली हैं? वो गॉलस्टोन्स वाली हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं. सो ऑन एडमिशन एज मोर देन 55, वाइट सेल काउंट मोर देन 16,000, LDH मोर देन 350, ग्लूकोज लेवल्स मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एस्पार्टेट ट्रांसफरेज मोर देन 250. Then within 48 hours hematocrit decrease by more than 10%. हमने कहा था डायग्नोसिस में इनिशियली हेमाटोक्रिट बढ़ जाता है क्योंकि थर्ड स्पेस लॉस होता है, उसके बाद जो डिक्रीज होता है उसको देखना है हमने. देन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज मोर देन 5 मिलीग्राम, सीरियम कैल्शियम लेस देन 8, आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 60, बेस डेफिसिट मोर देन 4 मिली इक्विवेलेंट्स, एंड एस्टिमेटेड फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन मोर देन 6 लीटर. एस्टिमेटेड फ्लूइड सिक्वेस्ट्रेशन क्या है? ये वो थर्ड स्पेस लॉस है जो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में पेनक्रेटिक एसाइटिस हो सकती है, जो एक्यूट फ्लूइड कलेक्शंस होती हैं उनकी वजह से जो लॉस है उसको जो एस्टिमेट करते हैं अगर वो 6 लीटर से ज़्यादा है तो इन सब का एक एक नंबर है. और याद रखें अगर रैनसन 3 से ज़्यादा है तो हम उसको कहते हैं मॉडरेट टू सीवियर में चला गया पेशेंट. माइल्ड वो है जिसका 1 to 2 रैनसन्स है. देन ग्लासगो क्राइटेरिया, ग्लासगो और इमरी क्राइटेरिया जो है ये एक्चुअली बना है फॉर फर्स्ट 48 आवर्स के लिए, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है कि एडमिशन पे आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी और फिर आपने 48 आवर्स के साथ उसको मैच करके देखा. ये आप विद इन 48 आवर्स किसी भी वक्त कर सकते हैं. इसमें 8 पैरामीटर्स है. उसी तरह एज मोर देन 55, वाइट सेल काउंट 15 है, इसमें LDH 600 है, उसमें 350 था, इसमें ग्लूकोज 180 है, उसमें 200 था, उसमें एल्ब्यूमिन मौजूद नहीं था, इसमें एल्ब्यूमिन की लेवल्स है लेस देन 3.2, कैल्शियम सेम 8, यूरिया 45 है, उसके अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन थी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है इसमें 60 है. सो काफ़ी चीज़ें ओवरलैप करती हैं. ग्लासगो क्राइटेरिया को, इमरी क्राइटेरिया को अगरचे विद इन 48 आवर्स है मगर इसके अलावा भी इस्तेमाल किया जा सकता है टू प्रोग्नोस्टिकेट योर पेशेंट्स. देन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज़ द अपाची एक्यूट फिजियोलॉजी एंड क्रॉनिक हेल्थ इवैल्यूएशन. ये अपाची 3 के क्राइटेरिया हैं जो कि तकरीबन 14 पैरामीटर्स हैं. अपाची 1 जो था वो इनिशियली उसमें 34 क्राइटेरिया थे. बेसिकली ये आईसीयू की मैनेजमेंट के किसी भी पेशेंट की आईसीयू के लिए इस्तेमाल होते थे. एंड देन दे फाउंड आउट कि जो अपाची है वो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के साथ इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है. सो अपाची 3 क्राइटेरिया में कट ऑफ्स आपको मिल जाएंगे इसके. इसमें टेम्परेचर, मीन ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजनेशन, देन आर्टीरियल पीएच, सीरम सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ल्यूकोसाइट्स, हेमाटोक्रिट, एल्बुमिन, बिलिरुबिन. तो अगर आप गौर से देखें तो जितने प्रोग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं उसमें तकरीबन वही चीज़ें हम देख रहे हैं. हम उसका ऑक्सीजनेशन देख रहे हैं, हम देख रहे हैं डिफरेंट एंजाइम्स के लेवल देख रहे हैं, हम ग्लूकोज के लेवल्स देख रहे हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट्स को देख रहे हैं, हम डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनके बेसिकली फंक्शंस को देख रहे हैं. हम देख रहे हैं पेशेंट ऑक्सीजनेट सही हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है, हम देख रहे हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन ठीक है, रीनल फंक्शन ठीक है, यूरिया क्रेटिनिन वगैरह सही आ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक है, पेशेंट शॉक में तो नहीं है. और जब हम उसके अंदर
टेम्परेचर, मीन ब्लड प्रेशर वगैरह डालते हैं, तो हम बाकी सिस्टम्स को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से देख के प्रोग्नोस्टिकेट कर सकते हैं। सारी प्रोग्नोस्टिकेशन का मकसद क्या है? ये देखना कि आपका पेशेंट माइल्ड एक्यूट पेनक्रेटाइटिस से सफ़र कर रहा है, मॉडरेट से सफ़र कर रहा है, या सीवियर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस से कर रहा है। देन रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग और इमेजिंग, जैसे हमने पहले भी बात की, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड अच्छी इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं है कि इसके सामने एक गैस फिल्ड ऑर्गन यानी कि स्टमक पड़ा है और दूसरे इंटेस्टाइन पड़े हैं, ये रीट्रोपेरिटोनियल है, तो नज़र इसको देखना मुश्किल है, लेकिन अल्ट्रासाउंड हमें बता सकता है कि गॉल स्टोन्स है कि नहीं, वो हमें बाइल डक्ट के स्टोन्स के बारे में बता सकता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली वो बाइल डक्ट की डायलेटेशन बता सकता है, जिससे हमें अंदाज़ा हो कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, और ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो उसकी वजह से पेनक्रेटाइटिस हो सकता है। देन सिंपल रेडियोलॉजी, चेस्ट एक्सरे और एब्डोमिनल एक्सरे इरेक्ट, हमें एक तो ये जैसे परफोरेटेड ड्यूनल अल्सर, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, इरेक्ट एब्डोमिनल एक्सरे, चेस्ट एक्सरे हमें पता लग सकता है फ्री एयर मौजूद है कि नहीं। देन ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस एक्चुअली ये बताती है कि एब्डोमेन में फ्री फ्लूइड पड़ा है कि नहीं पड़ा। देन सेंटिनल लूप कहते हैं कि जब चूँकि पैरालिटिक आइलियस हो जाती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो वो जो लूप डायरेक्टली इन कांटेक्ट होता है, जो बिल्कुल पैनक्रियास के पास पड़ा होता है, वो जो लूप होता है जेजुनम का, वो सेंटिनल लूप की तरह, संतरी की तरह उसके गिर्द हिफाजत के लिए कहते हैं बना। देन रीनल हैलो साइन हो सकता है, प्लूरल फ्यूजन हो सकती है, क्लोनिक कट ऑफ, जो ट्रांसवर्स कोलन के पास कट ऑफ साइंस हो सकते हैं, श्वास के मार्जिन्स का लॉस हो सकता है, एंड देयर कैन बी, अगर जब हम लैटरली देखते हैं तो स्टमक के और वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ा हुआ हो सकता है, बिटवीन द स्टमक एंड कोलन बड़ा हो सकता है बिकॉज ऑफ फ्लूइड कलेक्शन इन द लेसर सैक, एंड देन देयर कैन बी कैल्सिफिकेशन, अगर क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस था पेशेंट को तो कैल्सिफिकेशन पेनक्रियाज की नज़र आ सकती है, या हमें पता है कि 7 to 10% पेशेंट्स के अंदर जो गॉल स्टोन्स होते हैं वो रेडियोपेक होते हैं, वो भी प्लेन एक्सरे पे नज़र आ सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ सेंटिनल लूप लुक लाइक। ठीक है, पैरालिटिक आइलियस हुई है, लेकिन ये जो लूप बिल्कुल पेनक्रियास के पास पड़ा है, इसके अंदर गैस है नज़र आ रही है, एंड यू कैन सी दी कोलन कट ऑफ, यहाँ से ये जो ट्रांसवर्स कोलन है जहाँ पे पेनक्रियास के पास पड़ी है, वहाँ पे कोई एयर अंदर नहीं गई, ये कोलन कट ऑफ साइन जो कहलाता है। दीज आर रिलेटिव साइंस, ये सारे हिस्ट्री और एग्जामिनेशन दूसरी इन्वेस्टिगेशन के साथ मिला के इनको देखना है। इंडिपेंडेंटली सिर्फ इस एक्सरे को देख के आप नहीं कह सकते कि इस पेशेंट को पेनक्रेटाइटिस। देन ऑफ कोर्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज a computerized tomographic scan. Contrast enhanced spiral CT is the investigation of choice. It is usually done after 72 hours. एडमिशन के 72 आवर्स के बाद हम करके देखते हैं, ये देखने के लिए कि नेक्रोसिस हुआ है कि नहीं हुआ, और इसके ज़रिए हम CT गाइडेड एस्पिरेशन कर सकते हैं एब्डोमिनल फ्लूइड की, और फिर उस फ्लूइड को भी सेंड इट फॉर ग्राहम स्टेन एंड बैक्टीरियल कल्चर, एंड इफ द CT shows necrosis and the bacterial culture turns out to be positive, it tells us that it is infective necrosis, and these are the patients who would require necrosectomy, which is a grave undertaking. तो क्या नज़र आता है CT स्कैन, एनहांस CT स्कैन पे आप देख सकते हैं कि ये पेनक्रियास थोड़ा सूजा हुआ है, लेकिन कोई फ्लूइड कलेक्शन वगैरह नहीं है। इसके मुकाबले में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ पेनक्रियास सूजा हुआ है बल्कि सम फ्लूइड कलेक्शन भी है, और इसके मुकाबले में ये जो पेनक्रियास है इसकी एडिमेटस भी बहुत ज़्यादा है, फ्लूइड कलेक्शन भी ज़्यादा है, और देयर आर सम फीचर्स विच टेल कि शायद इसके अंदर नेक्रोसिस शुरू हो रहा है। तो चूँकि CT स्कैन इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, तो जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो है CT सिवेरिटी इंडेक्स, विच इज़ दी बाल्थाजर CT स्कोरिंग सिस्टम के ज़रिए हम CT सिवेरिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। इसमें दो चीज़ें, एक पेनक्रेटाइटिस को ग्रेड करते हैं और दूसरे पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस को ग्रेड करते हैं। तो पेनक्रेटाइटिस में नॉर्मल पेनक्रियास 0, एनलार्जमेंट ऑफ पेनक्रियास 1, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस इन पेनक्रियास एंड पेरी पेनक्रियाटिक फैट 2, ill defined single fluid collection 3, 2 or more poorly defined fluid collection 4. Remember it is poorly defined fluid collection along with ये जो एक चीज़ है उसके साथ दूसरी भी चीज़ है। जब एनलार्जमेंट ऑफ पेनक्रियास के साथ पेनक्रियास और पेरीपेनक्रियाटिक फैट में एनलार्जमेंट ऑफ पेनक्रियास विद इन्फ्लेमेटरी चेंजेस
विद फ्लूइड कलेक्शन है। ये नहीं कि पेनक्रियास नॉर्मल है, फ्लूइड कलेक्शन है, तो आप कह रहे हैं कि ये एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की ग्रेडिंग इससे करें। देन नेक्रोसिस, इफ देयर इज नो नेक्रोसिस इट इज 0, इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 30% ऑफ द टोटल पेनक्रियाटिक parenchyma, score is 2. If it is 30 to 50% it is 4, and if it is more than half of the pancreatic parenchyma then the score is 6. हम कैसे टोटल करते हैं, हम यहाँ के स्कोर के और यहाँ के स्कोर को जोड़ते हैं, तो if it is 2 plus 4 the score is 6, which tells us that it is severe acute pancreatitis. तो CT severity index इमेजिंग के ज़रिए आप प्रोग्नोस्टिकेट कर सकते हैं सेवेरिटी को, जिस तरह हमने पहले रैनसन को इस्तेमाल किया, ग्लासगो को इस्तेमाल किया या अपाची को इस्तेमाल किया फॉर प्रोग्नोस्टिकेटिंग। सिमिलरली टू क्लासिफाई कि वेदर दिस pancreatitis is mild, moderate or severe acute pancreatitis, we use CT severity index. देन वी कैन डू एंडोस्कोपिक डायग्नोसिस, हम उसकी बात पहले भी कर चुके हैं। विजुलाइज भी हो सकता है, बायोप्सी भी ले सकते हैं, और उसके अलावा जो है जो ERCP के ज़रिए हम स्टेंट कर सकते हैं। हम अगर कोई स्टोन फंसा हुआ है स्टोन निकाल सकते हैं, अगर वहाँ पे स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर को डायलेट कर सकते हैं। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रोसर्जिकल डिवाइसेस हैं, स्नेयर्स हैं, हीटर प्रोब्स हैं, पोलिप को निकाल सकते हैं, बलून डायलेटेशन कर सकते हैं, इस प्रोस्थेसिस डाल सकते हैं, इवन लिथोट्रिप्सी डिवाइसेस इस्तेमाल करके जो स्टोन वहाँ पड़े उन स्टोन्स को क्रश करके तोड़ सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं वेरियस चीज़ेस को, और मैग्नेटिक एक्सट्रैक्शन डिवाइसेस भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के लिए ये बड़ा सेंसिटिव और स्पेसिफिक टूल है डायग्नोस्टिक, लेकिन याद रखें कि ERCP करने से भी पेशेंट को जो है पेनक्रेटाइटिस होने का इम्कान हो जाता है। इट शोज डिटेल ऑफ द डक्टल एनाटमी, हमें स्ट्रक्चर्स का पता लगता है, रप्चर्स का पता लगता है, कम्युनिकेशन ढूंढ सकते हैं कि ये जो सूडोसिस्ट बनी है पेशेंट में, इसकी कम्युनिकेशन विद द पेनक्रियाटिक डक्ट है कि नहीं है। वंस अगेन हमें पता है एंडोस्कोप की तरह इस्तेमाल करते हैं, ये साइड व्यूइंग एंडोस्कोप होता है, और उसके ज़रिए ये जो एम्पुला है इसको कैनुलेट किया जाता है। कैनुलेट करके जब इस पर कंट्रास्ट देके हम तस्वीर खींचते हैं तो ये नज़र आता है ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, और ये मेजर पेपल है। और इसमें हम देख रहे हैं कि कोई हमें ऐसी एबनॉर्मैलिटी नज़र नहीं आ रही, कोई स्ट्रक्चर्स नज़र नहीं आ रहे, कोई फिलिंग डिफेक्ट नज़र नहीं आ रहे, और नॉर्मल साइज़ की लग रही है। नॉर्मल डक्ट ऑफ वर्सन का साइज़ क्या है, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट का अबाउट 4 मिलीमीटर, और नॉर्मल CBD लेस देन 8 मिलीमीटर इज नॉर्मल। देन स्फिंक्टर 4D का जो बेजल स्फिंक्टर प्रेशर है उसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रैक्शन भी आप इस एंडोस्कोप के ज़रिए वहाँ पे ट्रांसड्यूसर लगा के कर सकते हैं। और अगर उसका प्रेशर मोर देन 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है तो इसका मतलब है स्फिंक्टर 4D का डिसफंक्शन है, और इस इंक्रीज्ड प्रेशर की वजह से जो एनॉमलस जंक्शन है उसकी वजह से जो है देयर इज इंक्रीज इन द डक्टल प्रेशर, एंड दैट इज रिजल्टिंग इनटू एक्यूट पेनक्रेटाइटिस बिकॉज ऑफ एसिनर सेल इंजरी। ट्रीट कैसे करते हैं? बेसिक एम ट्रीटमेंट का है टू हॉल्ट द प्रोग्रेशन ऑफ लोकल डिजीज़। एक तो जो पेनक्रेटाइटिस है उसको अगर वो माइल्ड से शुरू है तो उसको मॉडरेट टू सीवियर में ना जाने दें, और दूसरी अहम बात यह रिमोट ऑर्गन फेलियर को प्रिवेंट करना है। तो अगर हम लोकल डिजीज़ को प्रोग्रेस होने से रोक लेंगे और ऑर्गन फेलियर को बचा लेंगे देन यू आर एबल टू ट्रीट दिस पेशेंट सक्सेसफुली। कोई भी सेवेरिटी है, इवन माइल्ड पेनक्रेटाइटिस है तो पेशेंट का हॉस्पिटलाइज होना मैंडेटरी है, और मैंडेटरी इसलिए है कि यू डू नॉट नो कि इस वक्त पेशेंट को माइल्ड पेनक्रेटाइटिस है तो 24 घंटे बाद 36 घंटे बाद वो माइल्ड से मॉडरेट या सीवियर में भी जा सकता है। सो क्योंकि जब आपने पेशेंट को एक दफ़ा देखा है तो वो एक स्नैपशॉट है, डिजीज़ तो एक कंटिन्यूस रनिंग फिल्म है, मूवी है, उसमें से सिर्फ आप एक स्नैपशॉट देख के डिसाइड नहीं कर सकते। सो दीज पेशेंट्स रिक्वायर टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, दे रिक्वायर फुल सपोर्टिव थेरेपी। इनको हम नील बाय माउथ करते हैं, इनको कैथेटराइज करते हैं, यूरिनरी कैथेटर इनके आउटपुट देखने के लिए हमें सेंट्रल वीनस लाइन चाहिए ताकि हमें पता लगे इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम कैसा है। हमें पता है बड़े थर्ड स्पेस लॉसेज हुए हैं, फ्लूइड शिफ्ट्स हुई हैं जिनकी रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। तो अगर पेशेंट की मायोकार्डियम फेल्ड है या एज ज़्यादा है, पुराना, हमें पता है कि कार्डियक डिजीज़ है और सेंट्रल वीनस प्रेशर ट्रू पिक्चर नहीं दे रहा है इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम की, तो उन पेशेंट्स के लिए आर्टीरियल लाइन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, उनको दूसरे कैथेटर डालने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर इनको लगातार आपने इनके इलेक्ट्रोलाइट्स को, इनके यूरिया क्रिएटिनिन को चेक करना है, कैल्शियम लेवल्स देखनी है, शुगर लेवल्स देखनी है, और लिवर फंक्शन टेस्ट देखने हैं।
आम तौर पे पेशेंट्स चूँकि माइल्ड एक्यूट पैनक्रेटाइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन वैरायटी, सो अबाउट 90% ऑफ दीज पेशेंट्स दे गेट वेल विद इन 3 to 7 days। हम पेन रिलीफ देते हैं, आईवी फ्लूइड्स, कोलॉइड्स देते हैं, गट को रेस्ट देते हैं, नील बाय माउथ। अगरचे अब आजकल जो नया एविडेंस है वो आफ्टर 6 आवर्स वो कहते हैं कि अगर आप क्लियर फ्लूइड देना शुरू करें तो उसमें कोई हरज नहीं है पेशेंट्स को। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसी कोई चीज़ जिसमें बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स की उसकी ज़रूरत होगी, दैट मे कॉज ट्रबल, लेकिन क्लियर फ्लूइड्स दिए जा सकते हैं। देन यू नीड टू ट्रीट हाइपोकैल्सीमिया इफ इट इज़ सिम्टोमेटिक। हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम का हमें पता है, टेटनी हो सकती है, latent टेटनी हो सकती है, that needs to be rectified because calcium is required for various important functions and even coagulation as well. Then we need antibiotic prophylaxis, especially जो patients जिनमें severe pancreatitis है, अगरचे हमारे पास अभी एविडेंस चाहे नहीं भी है नेक्रोसिस का, इवन देन हम एम्पेरिकली एंटीबायोटिक शुरू करा देते हैं। और मोस्ट कॉमनली जो आजकल इस्तेमाल की जा रही दैट इज़ इमीपेनम सिलेस्टिन 500 milligram 3 times a day and it is continued for 2 weeks। सर्जरी कब करनी पड़ती है? कोशिश आपकी ये है कि आपको सर्जरी ना करनी पड़े। यूजली कब करते हैं? एक डायग्नोसिस क्लियर नहीं था, आपने इसको कुछ और समझ के खोल लिया इनिशियली, अभी आपके पास इमेजिंग नहीं थी या आपके पास बाकी उस तरह की कंफ्यूजिंग पिक्चर थी डायग्नोसिस में। तो एक तो इसलिए इन्वेस्टिगेट लेप्रोटमी होगी एक्सप्लोरेटरी कि यू कुड नॉट रीच ए डेफिनेटिव डायग्नोसिस, लेकिन आपके पास एक्यूट पैनक्रेटाइटिस डायग्नोज हो चुका है, तब जब हमने सर्जरी करनी है तो हमारा उस वक्त सिर्फ फंक्शन जो है वो नेक्रोसेक्टमी का है। जब पेशेंट को नेक्रोटाइजिंग पैनक्रेटाइटिस है और वो इन्फेक्ट कर रहा है और सेप्सिस हो रहा है पेशेंट को, उन पेशेंट्स के लिए नेक्रोसेक्टमी करनी पड़ती है। तो उसके लिए जो असूल है, यू गो राइट टू द टारगेट, यू जस्ट एक्सपोज, ड्रेन एंड होप। और हम नेक्रोसेक्टमी भी इंस्ट्रूमेंट से नहीं करते, पैनक्रियाज का जो डेड पार्ट है उसको किसी चीज़ से पकड़ते नहीं है, कोई फोर्सेप्स नहीं लगाते, उसको जेंटल वाटर जेट से 50 cc सिरिंज में नॉर्मल सेलाइन भर के उससे वॉश करते हैं कि जो डेड स्लफ है वो वहाँ से खुद से निकला है और उसको दूर से सकर से सक कर लेते हैं। यू बिकॉज इट इज़ इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ वेरियस वेसल्स एंड यू डू नॉट नो कि नीचे से कितने वेसल के इरोड होने का कितना इम्कान है अगर आप वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। तो यू जिंजरली ये काम किया जाता है। सिर्फ आपकी कोशिश होती है जो डेड सेगमेंट है उसको निकाल दें, लेसर सैक को ड्रेन कर दें अच्छी तरह और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपका पेशेंट ठीक हो जाए। सो गाइडलाइंस क्या है? गाइडलाइंस ये है, माइल्ड एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में किसी किस्म की कोई इंडिकेशन नहीं है। इन्फेक्टेड पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस में जिनमें क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स हैं सेप्सिस के, उनके अंदर आप सर्जरी या रेडियोलॉजिकल ड्रेनेज की इंडिकेशन बनती है। पेशेंट्स जिनका पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस तो है लेकिन किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं है, उनको यूजुअली इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। यूजुअली विद इन 14 days ऑफ ऑनसेट ऑफ डिजीज़ की ज़रूरत नहीं है नेक्रोटाइजिंग पैनक्रेटाइटिस में जिनमें किसी किस्म की सेप्सिस प्रोड्यूस नहीं हुई। सेप्सिस नहीं है, पेशेंट बेहतर हो रहा है, अगरचे नेक्रोसिस का एविडेंस है, इवन देन यू डोंट नीड टू गो इन। सर्जिकल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इंटरवेंशनल मैनेजमेंट दे शुड फेवर ऑर्गन प्रिजर्विंग अप्रोच। कोशिश हमारी ये है कि पैनक्रियाज को जितना हम प्रिजर्व कर सकें उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ये ना सिर्फ एक्सोक्राइन फंक्शन से ज़्यादा है, इसका एंडोक्राइन फंक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर पेशेंट जो है अपना पैनक्रियाटिक फंक्शन लूज़ कर जाता है तो इन पेशेंट्स को ब्रिटल डायबिटीज़ होती है, ऐसी डायबिटीज़ होती है जिसको कंट्रोल करना, जिसको मैनेज करना काफ़ी दुश्वार है। इट कैन लीड टू इवन डेथ ऑफ द पेशेंट्स बिकॉज ऑफ पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। सो आवर मेन पर्पस इज टू प्रिजर्व द ऑर्गन, सिर्फ डेड और स्लफ्ड पार्ट को निकालना और वहाँ पे एडिक्वेट ड्रेनेज दे के आना कि सब्सिक्वेंटली अगर वहाँ फ्लूइड कलेक्शन हो, मजीद नेक्रोसिस हो या कुछ हो तो उसको आप वहाँ से ड्रेन कर सकते हो। सो ये एक एल्गोरिथम है। देयर इज डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, देन देयर इज डायग्नोसिस ऑफ पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस। कंट्रास्ट एंड सीटी पे हमने देखा है कि वहाँ पे गैस नज़र आ रही है, वहाँ पे एडीमा के अंदर गैस बबल्स पड़े जो कि नेक्रोसिस को वो करते हैं। हमने एफएनएसी की, एफएनएसी करने के बाद पता लगा कि सेप्सिस नहीं है, किसी किस्म का बैक्टीरियल कल्चर नहीं है। इन पेशेंट्स की नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट होती है और यूजुअली एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट ये रिकवर कर जाते हैं।
अगर आपने जो कल्चर किया, कल्चर के ऊपर वहाँ पे सेप्सिस का साइन आ गया, कल्चर पॉजिटिव आ गया, अब इन पेशेंट्स की आप इमेज गाइडेड जो कल्चर करने के बाद आप इमेज गाइडेड भी निकाल सकते हैं, ड्रेन कर सकते हैं, या आप सर्जिकली ड्रेन करते हैं। जो स्ट्राइल नेक्रोसिस है, नेगेटिव कल्चर है, उनको ऑपरेटिव मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं। जो इन्फेक्टिव नेक्रोसिस है, पॉजिटिव कल्चर है, इन पेशेंट्स को आपको ऑपरेट करके सर्जिकली डिब्रीड करना पड़ता है। ये याद रखें कि अगर पेशेंट का नेक्रोसिस है विद पॉजिटिव कल्चर है, सेप्सिस है, ऑर्गन डिसफंक्शन है, इन पेशेंट्स का योर हैंड वुड बी फोर्स, यू वुड हैव टू गो इन एंड मेक श्योर कि आप उस सेप्सिस के सोर्स को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। फोकस क्या है? फोकस ये देखना है कि नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस में इन्फेक्शन है कि नहीं। जब तक इन्फेक्शन नहीं है, साइन सिम्टम्स ऑफ सेप्सिस नहीं है, यू आर नॉट प्लानिंग एनी इंटरवेंशन। नेक्रोसिस है, कल्चर पॉजिटिव है, साइन सिम्टम्स ऑफ सेप्सिस है, ओनली देन यू गो इन एंड यू डू एन ऑर्गन प्रिजर्विंग अप्रोच। नेक्रोसेक्टमी करें, ड्रेन करें और कोशिश करें कि मिनिमम पेनक्रियाटिक टिश्यू को आप निकालें। कोलिसिस्टेक्टमी कब करनी है? कोलिसिस्टेक्टमी हर गॉलस्टोन इंड्यूस्ड पेनक्रियाटाइटिस के अंदर करने की ज़रूरत है। माइल्ड जो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हुआ है उसमें जब एंजाइम्स के लेवल्स ठीक हो जाए, पेशेंट रिकवर हो जाए, तो सेम एडमिशन में किया जा सकता है। लेकिन अगर मॉडरेट या मॉडरेट टू सीवियर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हुआ है तो उसमें कोलिसिस्टेक्टमी को हम डिले करते हैं जब तक सफिशिएंटली रिजॉल्व नहीं हो जाता इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। हमें पता है मॉडरेट और सीवियर कौन सा होता है? वो होता है जिसमें ऑर्गन डैमेज हुआ होता है। अगर ऑर्गन डैमेज है, जो मल्टी सिस्टम ऑर्गन डिसफंक्शन की हम बात करें, so we wait for the patients to be properly optimized and then we go in. But in mild pancreatitis where there is no organ dysfunction, you can do it in the same admission. If there are any questions, you can email me freely. Next talk would be about the complications of acute pancreatitis.